Nasreen is one among the girls who has fought back the social evils of the society and stood as a role model for the society. Nasreen is the second daughter in her family. Like her sister, Nasreen got married at the age of 16 years. After getting married, she became the victim of domestic violence in hands of her in-laws, and within 6 months, she came back to her parents. मेरी कम उम्र में शादी इसलिए करवाई दी कि क्यों बोल तो कमाने वाले भी ज़्यादा नहीं थे, और मेरे शादी में जो दहेज मांग रहे थे ना, वो लोग कोई भी कुछ भी नहीं मांग कर रहे थे, इसलिए मेरी शादी जल्दी की गई थी। हमारे खाला सास जो थे ना, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को क्या बोले, क्योंकि क्यों बोलते तुम दहेज कुछ भी नहीं लिए। ऐसी छोटी छोटी बात पे लड़े हो गए बात हुई तो घर को चल जाओ बोल के बोले थे। तो मैं अम्मी को ऐसा फ़ोन करके बोली थी ऐसा घर को चल जाओ बोल रहे बोल के। तो अम्मी आके बात करे, फिर 2-3 दिन अच्छे रहे, उसके बाद फिर जो है ना ऐसी लड़ाई कर रही। तो मैं फिर फ़ोन करके बोल तो फिर मैं घर को आ गई, आ जाओ बोल। तो घर को आने के बाद मैं 2-4 महीने यहीं पर थी। उसके बाद फ़ोन पे जो है सो मैं डिवोर्स दे देता हूँ बोल के ऐसा बोल दिए थे, फिर मैं यहीं पर रह गई थी। After coming back to her parents, she was very nervous as she felt that her return is an additional burden on her poor parents. नसरीन रो रहे थे, ससुराल से आने के बाद बहुत तकलीफ में थे, रो रहे थे, तो ले जाके छोड़े, तो फिर कोशिश करे तो फिर वापस ला लिए। उनकी खुशहाल ज़िंदगी होती बोल को हम सोचे थे, हर अच्छे होते बोल को सोचे थे, लेकिन नहीं, अपने पैर पे खड़े रह के खुशहाल ज़िंदगी करना चाह रहे। Unfortunately, she did not have an alternative other than this. As she did not study beyond 3rd class, she didn't have any professional skill to stand on her foot and lead an independent life. One day, she came in contact with one of the community organizers working with Mahita. She was guided to join the vocational training center which is situated in her neighborhood. मैं वोकेशनल सेंटर इसीलिए गई क्यों बोलता, अब मैं डिवोर्स हो गया था मेरा, तो अब घर में बैठ के क्या करूं मैं बोल के वोकेशनल सेंटर जाके मैं टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइन सीखी। वहां पर सीखने के बाद मैं कपड़े 1-2 साल में घर में कपड़े स्टिच करती थी। At the center, she learned tailoring and machine embroidery. But she was not satisfied by acquiring this skill as she wanted herself to see in a different position. By seeing her confidence and courage to acquire different position, she was given an opportunity to join the video volunteers training program along with other girls from her area. वीडियो ट्रेनिंग ऐसा दे रहे बोल के मालूम था मेरे को, तो मैं ऐसा पापा को पूछे ऐसा ट्रेनिंग है करूँ क्या बोल, तो अगर तुम करना चाहे तो कर सकते बोल के बोले। Initially, she faced many difficulties in knowing the operation of camera, technical stuffs and other things at the training due to her educational background. In spite of this, her confidence and interest to learn made it easy for her. ज्वाइन होने के बाद मेरे को फ़ोटोज़ लेने भी नहीं आता था, फिर फ़ोटो स्टोरी बनाना, फिर वीडियो लेना, फिर एडिटिंग करना, ये सब वगैरह वगैरह सब सीखी। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वो बनाना करना सब सीखी थी। सामने किसी के निकल के बात करने नहीं आता था। मैं 1-2 ड्रामे करी यहाँ पर, जब से मेरा डर भी निकल गया और मेरा हौसला और आगे बढ़ गया। She is now rendering her time in supporting the girls in making films, as well as she works as a sales girl at the nearby garment showroom to earn her living. She is also taking up video shooting assignments in marriage functions along with other colleagues. वो पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी वो अच्छे से कैमरा हैंडल करती है, कंप्यूटर पे बैठकर अच्छे से एडिटिंग करती है, अब अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। नसरीन के साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहुत हिम्मत दिखाती है, ये बहुत बड़ी बात है। The story of Nasreen is one among the many stories which are rampant in the slum areas of Hyderabad, where the girls are married off at a very tender age and then have to face social evils like dowry harassment, domestic violence, etc. छोटी उम्र में शादी लड़की की नहीं करना चाहिए। अगर शादी हो भी गई तो उसको देख कर देना चाहिए। अगर शादी होने के बाद ऐसा टूट भी जाता है तो लड़की ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मेरा डिवोर्स हो गया, कोई भी नहीं है बोल के। अपने माँ बाप तो अपने साथ रहते ना, उसको हौसला करके आगे बढ़ना चाहिए, या नहीं तो वो कुछ जॉब कर सकती है, कुछ सीख सकती है, ऐसी जैसे मैंने सीखा। इंसान अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि अपने आप को यकीन रहना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। हर लड़की भी यही सोचना चाहिए कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई और भी कर सकते हैं। However, every girl is not so lucky to get a support to lead an independent life. But the story of Nasreen's confidence and courage could become an inspiration for them.